بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام میں محمد بن قاسم کی قسط نمبر 18 ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور محمد بن قاسم نے جس وجہ سے دیبل سندھ پر حملہ کیا تھا یہ اس کی ابتدائیہ ہے۔ اور دوستو، ہم آج بیان کر رہے ہیں دیبل کی جیل کا۔ کوٹری کا دروازہ کھلا اور پہرے دار نے جے رام کو ہاتھ باندھ کر پرنام کیا اور کہا، آپ کو سردار پرتاپ رائے بلاتے ہیں۔ جے رام پہرے دار کی طرز عمل میں اس تبدیلی پر حیران تھا۔ وہ چپکے سے اس کے ساتھ ہو لیا۔ پرتاپ رائے اپنے دیوان خانے کے برآمدے میں آبنوس کی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ چاندی کی ایک تشت میں سرادیپ کا راجے کے وہ طوائف پڑے ہوئے تھے جو گزشتہ شام اربوں کی جہاز سے لوٹے گئے تھے۔ اس نے جے رام کو دیکھتے ہی جوہرات کے انبار کی طرف اشارہ کیا اور کہا، جے رام، مہاراج سرادیپ کے طوائف کا دیکھ کر کاٹھیا وار کے راجہ کے طوائف کی نسبت زیادہ خوش ہوں گے۔ ان میں ایک ایک ہیرا تمہارے صندوق کے سارے قیمتی زرع سے زیادہ ہے۔ جے رام نے اس پر قہر آلود نگاہ ڈالی اور کانٹنے کو لگا۔ پرتاپ رائے نے کہا، لیکن تمہارا چہرہ زرد اور تمہاری آنکھیں سرخ ہے، معلوم ہوتا ہے تم رات بھر نہیں سوئے۔ کوٹری میں بہت گرمی ہوگی۔ بندرگاہ سے واپس آ کر مجھے تمہارا خیال نہ آیا، ورنہ تمہیں اتنی دیر وہاں رکھنے کی ضرورت نہ تھی۔ میں نے مہاراج کی خدمت میں ایلچی بھیج دیا ہے۔ چند دنوں تک قیدیوں کے متعلق ان کا حکم آ جائے گا۔ جے رام نے کہا، تو آپ نے انہیں قید کر لیا؟ ہاں، میں نے تمہیں کل بھی بتایا تھا کہ یہ راجہ کا حکم ہے۔ آپ نے انہیں لڑ کر قید کیا یا میزبان بنا کر؟ پرتاپ رائے نے جواب دیا، تم ابھی بچے ہو، لڑائی میں سب کچھ جائز ہے۔ میری بہن کہاں ہے؟ کون؟ میری بہن کہاں تھی؟ آپ مجھے بتانے کی کوشش نہ کریں۔ ایک راجپوت کی عزت پر ہاتھ ڈالنا اس قدر آسان نہیں جس قدر آپ سمجھتے ہیں۔ میں پہلے آپ کے راجہ کا ملازم تھا اور اب میں کاٹھیاوار کے راجہ کے سفیر کی حیثیت میں یہاں آیا ہوں۔ اگر آپ نے میری بہن کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو یاد رکھیے میں کاٹھیاوار سے لے کر راجپوتانہ تک آگ کی دیوار کھڑی کر دوں گا، اور مہاراج اپنے ہزاروں سپاہیوں کی جانیں ضائع کرنے کے بجائے دیبل کے ایک مغرور حاکم کو ہمارے حوالے کر دینا زیادہ مناسب سمجھے گے۔ اس میں عرب وہ مہمان تھے۔ مجھے افسوس ہے کہ وہ میری وجہ سے اس مصیبت میں مبتلا ہوئے۔ ممکن ہے کہ ان کے متعلق میری پکار ہندوستان کے کسی گوشے میں نہ سنی جائے، لیکن ان کی بازو بہت لمبے ہیں، وہ جب چاہیں گے آپ کا گلا دبوچ لیں گے۔ پرتاپ رائے کو معلوم تھا کہ بعض اوقات راجہ کے غلط احکام بجا لینے کی خمیزہ اہلکاروں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اس لیے حاکم خطرے کے وقت اپنے قصور اہلکاروں کے سر توپ دیتے تھے۔ عربوں کے متعلق وہ اپنے راجہ کی طرح مطمئن تھا، لیکن وہ کاٹھیاوار کے سفیر کی بہن کی ذمہ داری لینے کو تیار نہ تھا۔ اس نے کہا کہ جے رام، مجھے تمہاری بہن کے متعلق کوئی علم نہیں، آپ جھوٹ کہتے ہیں۔ میں اسے جہاز پر عرب عورتوں کے پاس چھوڑ آیا تھا۔ عورتیں جو جہاز پر تھی وہ سب ہماری قید میں ہیں۔ اگر تمہاری بہن ان میں ہے تو میں ابھی تمہارے ساتھ چل کر اس سے معافی مانگتا ہوں۔ چلو۔ بہن کو تلاش کرنے کی خواہش جے رام کے تمام ارادوں پر غالب آ گئی اور وہ پرتاپ رائے کے ساتھ چل پڑا۔ راستے میں اس نے پوچھا، عرب ملاحوں کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا؟ پرتاپ رائے نے جواب دیا، وہ سب آخری وقت تک لڑتے رہے۔ عورتوں اور بچوں کے علاوہ ہم صرف 5 آدمیوں کو زندہ گرفتار کرنے میں کامیاب ہوئے۔ دوسرے جہاز پر سرادیپ کے ملاحوں نے معمولی مزاحمت کی، لیکن جلدی ہتھیار ڈال دیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بیک وقت سرادیپ اور عرب کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ میں نے صرف راجہ کے احکام کی تعمیل کی ہے، اور جب تک میں اس عہدے پر ہوں میں ایسے احکام کی تعمیل کرتا رہوں گا۔ میرے خط کے جواب میں راجہ نے اگر تمہیں بلا بھیجا اور تم نے ان سے قیدیوں کو رہا کرنے کی اجازت حاصل کر لی تو مجھے خوشی ہوگی۔ میں خواہ مخواہ کی ذمہ داری سے بچ جاؤں گا۔ محل سے نکل کر چند قدم کے فاصلے پر جے رام اور پرتاپ رائے قید خانے کی 4 دیواری میں داخل ہوئے۔ پہرے داروں نے
प्रताप राय का इशारा पाकर अरबों के कमरे का दरवाजा खोला। औरतों ने अपने चेहरे ढांप लिए। अरब मलाहों ने जयराम को देखते ही मुंह फेर लिए। जुबैर एक कोने में दीवार के सहारे बैठा हुआ था। इसने नफरत और हकारत से जयराम की तरफ देखकर अपने साथियों की तरफ मुंह फेर लिया। जयराम ने प्रताप राय की तरफ देखा और कहा, मेरी बहन यहाँ नहीं। वो कहाँ है? प्रताप राय ने कहा कि एक पहरेदार को आवाज देकर अंदर बुलाया और इससे पूछा, क्या तमाम औरतें इसी कमरे में हैं या सरादीप के मलाहों के कमरे में भी कोई है? नहीं महाराज, तमाम औरतें यही हैं। जयराम ने बदहवास होकर जुबैर की तरफ देखा और टूटी फूटी अरबी में कहा, जुबैर, मेरी तरफ इस तरह न देखो, मैं बेकसूर हूं। तुम्हें मालूम है मेरी बहन कहाँ है? जुबैर के मुंह से अचानक एक भूखे शेर की गिर से मिलती जुलती आवाज निकली, तुम मेरी तवक्को से ज्यादा जलील साबित हुए हो। तुम झूठ से हकीकत पर पर्दे नहीं डाल सकते। लेकिन याद रखो, अगर नाहिद का बाल भी बेका हुआ तो खुदा की जमीन पर तुम्हें कोई ऐसा खित्ता नहीं मिलेगा जो हमारे इंतकाम से पनाह दे सके। नाहिद को उड़ाने के लिए तुमने अपनी बहन को जहाज पर छोड़ा था। तुम्हारी तदबीर कामयाब थी। तुमने अपने इस हलीफ को हमारा मेजबान बनाकर भेजा और मुझे जहाज से बुलवाया और खुद पीछे से जहाज पर पहुंचकर नामालूम किस बहाने से नाहिद को कहीं ले गए। लेकिन अगर सुलह और जंग के लिए तुम लोगों के असूल यही हैं, तो याद रखो कि तुम्हारे राजा के दिन गिने जा चुके हैं। प्रताप राय ने अचानक सिपाही के हाथ से कोड़ा छीनकर जुबैर के मुंह पर दे मारा और दूसरी जरब के लिए तैयार था कि जयराम ने आगे बढ़कर इसका हाथ पकड़ लिया। प्रताप राय ने हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, तुम राजा की तौहीन बर्दाश्त कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता। जयराम ने कहा, मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूं कि मेरी बहन और इस अरब लड़की को तुमने कहां छुपाया हो? इस सवाल ने प्रताप राय का गुस्सा ठंडा कर दिया और थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, क्या ये मुमकिन नहीं कि हमारे हमले के वक्त इस इंतकामी जज्बे के मतहत जहाज से नीचे फेंक दिया गया? जयराम ने जवाब दिया, ये लोग दुश्मनी में शराफत को हाथ से नहीं जाने देते। मेरी बहन के साथ अरब लड़की का गायब होना यह ज़ाहिर करता है कि इस साजिश की तह में किसी तुम्हारे जैसे कमीने आदमी का दिमाग काम कर रहा है। जुबैर ने फिर जयराम से मुखातब करके कहा, तुम इन बातों से मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। नाहिद, खालिद और तुम्हारी बहन बेअक वक्त जहाज से गायब हुए और वो यकीनन तुम्हारी कैद में है। मुझे तुमसे किसी नेकी की तवक्को नहीं, लेकिन हम इतना जरूर चाहते हैं कि हमें सिंध के राजा के सामने पेश किया जाए और जब तक वो हमारे फैसला नहीं करता, नाहिद और खालिद को हमारे साथ रखा जाए। प्रताप राय ने चौंक कर कहा, मैं अब समझा जयराम, अगर इन लड़कियों के साथ जहाज पर से कोई आदमी भी गायब हुआ है तो ये मामला साफ है। कल रात बंदरगाह से एक सरकारी किश्ती भी गायब हो गई है, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं जा सकते। तुम मेरे साथ आओ। प्रताप राय और जयराम कैद खाने से बाहर निकलकर घोड़ों पर सवार हुए और इन सर पर उड़ाते हुए बंदरगाह पर पहुंचे। बंदरगाह के पहरेदारों ने शाम के वक्त किश्ती गायब हो जाने के मुतालिक प्रताप राय के बयान की तस्दीक की और माया के मुतालिक जयराम की तशवीश बढ़ने लगी। प्रताप राय ने चंद किश्तियां और जहाज शुमाल और मगरब की साहिल के साथ साथ देखभाल के लिए रवाना कर दिए और जयराम को तसल्ली दी कि वो ज्यादा दूर नहीं जा सकते। जयराम प्रताप राय के साथ वापस शहर चला आया। दोपहर तक अपने मकान में माया के मुतालिक कोई खबर ना पाकर इसने बंदरगाह पर जाने का इरादा किया, लेकिन प्रताप राय का सिपाही आया और इसे अपने साथ इसके महल की तरफ ले गया। तो दोस्तों, प्रताप राय के महल के बाएं बाग में जुबैर और अली नारियल के दो दरख्तों के साथ जुकड़े हुए थे। प्रताप राय, इसके चंद सिपाही और दो जलाद हाथ में कोड़ू लिए इनके पास खड़े थे। अली और जुबैर की झुकी गर्दनें और अरियां सीनों पर जरबों के निशानात जाहिर कर रहे थे कि इन्हें नाकाबिले बर्दाश्त जिस्मानी अजियत पहुंचाई जा चुकी है। एक सिपाही ने जयराम की आमद की इतला दी और प्रताप राय का इशारा पाकर जलाद जुबैर और अली पर कोड़े बरसाने लगे। जुबैर एक चट्टान की तरह खड़ा था, लेकिन अली की कुव्वतें बर्दाश्त जवाब दे चुकी और कोड़े की हर जरब के साथ इसके मुंह से चीखें निकल रही थी। बाहर के दरवाजे में पांव रखते ही अली की चीख पुकारने
जय राम को मुतवज्जह किया और इसने भाग कर दोनों जल्लादों को यके बाद दिगरे पीछे धकेल दिया और प्रताप राय की तरफ मुतवज्जह होकर कहा, ये जुल्म है, ये पाप है। आपने मुझसे वादा किया था कि आपने इनका फैसला राजा पर छोड़ दिया है। प्रताप राय ने अली की तरफ इशारा करते हुए जवाब दिया, ये लड़का सिपाहियों ने शहर से तलाश किया है। मालूम होता है कि ये तुम्हारी बहन के साथ ही जहाज पर से रूपवश हुआ था और इसके बाकी साथी शहर के आसपास कहीं छुपे हुए हैं। जयराम ने आगे बढ़कर अली से पूछा, तुम कहाँ थे, मेरी बहन कहाँ है? अली ने सरापा अल्तजा बांधकर इनकी तरफ देखा और फिर गर्दन झुका ली। जयराम ने कहा, अगर तुम्हें माया देवी के मुताबिक कुछ मालूम है तो बता दो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। अली ने दोबारा गर्दन उठाई और चला चला कर कहना शुरू किया, मुझे मालूम नहीं, मैं सच कहता हूँ, मुझे इनके मुताबिक मालूम नहीं। मैंने जहाज पर से कूदने से पहले इन्हें तलाश किया था, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि वो कैसे गायब हुए। जयराम ने पूछा, तुम शहर में कैसे पहुंचे? मैं जहाज से कूदकर समुद्र के किनारे एक किश्ती में छुप गया था। आज मैं शहर पहुंचा और सिपाही मुझे पकड़कर यहाँ ले आए। तुम सब जालिम हो, मैंने तुम्हारा कोई तसव्वुर नहीं किया। जयराम ने जुबैर की तरफ देखा, लेकिन हैरानी, गुस्सा, मजामत और अफसोस की जज्बात के जान में वो इससे मुखातब होने के लिए मौजूद अल्फाज तलाश कर न कर सका। इसकी आंखें एक बार उठी और झुक गई, होंठ कंपकपाए और एक दूसरे से पवित्र हो गए। इसने प्रताप की तरफ मुतवज्जो होकर कहा, आप इन्हें छोड़ दें, मुझे इन पर कोई शुबा नहीं। प्रताप राय ने कहा, मैं इन्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? अगर तुम्हारी बहन जहाज पर थी तो इनको यकीनन ये इल्म होगा कि वो कहाँ है। तुम शायद अब तक मुझे मुजरम ख्याल करते हो और मैं इन लोगों की जबान से तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, अपना फर्ज समझता हूँ कि तुम्हारी बहन के इन लोगों ने छुपा रखा है। अगर वो जिंदा है नहीं तो उन्होंने जहाज पर हमला होने से पहले इसे समुद्र में फेंक दिया होगा। अब या इन्हें अपने जुर्म का इकबाल करना पड़ेगा या तुमको तस्लीम करना पड़ेगा कि तुम्हारी बहन जहाज पर थी ही नहीं और तुमने मुझे मारूफ करने के लिए ये बहाना तलाश किया। प्रताप राय ने फिर जल्लादों को इशारा किया और वो जुबैर और अली पर फिर कोड़े पर छाने लगे। जयराम चलाया, ठहरो, ये बेकसूर है, ये जुल्म है, इन्हें छोड़ दो। लेकिन इसकी चीखों पुकार बेअसर साबित हुई। इसने आगे बढ़कर एक जल्लाद के मुंह पर घुसात रसीद किया, लेकिन प्रताप राय के इशारे से चंद सिपाहियों ने इसे पकड़कर पीछे हटा दिया और वो सिपाहियों की गिरफ्त से आजाद होने के लिए जिद्दोजहद कर रहा था। अली चीखें मारने की बजाय नीम बेहोशी की हालत में आहिस्ता आहिस्ता करा रहा था। जुबैर हर कोड़े पर की जरब के बाद जयराम की तरफ देखता और फिर आंखें बंद कर लेता। बिलाखिर अली के कराहने की आवाज बंद होगी और गर्दन उठाए और आंखें खोलने के लिए जुबैर की ताकत भी जवाब देगी। प्रताप राय ने एक सिपाही को गर्म लोहा लाने का हुक्म दिया। जयराम फिर चलाया, प्रताप, तुम जालिम हो, कमीने हो, मुझे जो सजा चाहो दे लो, लेकिन इन पर रहम करो। प्रताप राय ने गर्ज कर कहा, ये मुझे तुम्हारी बद जबानी की परवाह नहीं, मैं तुम्हारे फैसला महाराज पर छोड़ूंगा, लेकिन इस वक्त इनकी जान मेरे कब्जे में है। मैं इनकी आंखें निकलवा दूंगा, इनकी बोटियां नोच डालूंगा। ये नामुमकिन है कि ये जिंदा भी रहें और तुम महाराज के पास जाकर अपनी बहन के अगवा किए जाने की जिम्मेदारी भी मुझ पर डालो। अगर तुम्हारी बहन जहाज पर से गायब हुई तो मैं जरूर इसका पता लगाऊंगा। इसके लिए अगर मुझे इन तमाम बच्चों और औरतों के साथ यही सलूक करना पड़ा तो मैं बेदरेक करूंगा। सिपाही ने लोहे की सलाख प्रताप राय के हाथ में दे दी और वो जुबैर की तरफ बढ़ा। जयराम ने बुलंद आवाज में कहा, नहीं नहीं, ठहरो, मेरी बहन जहाज पर ना थी, मैं अकेला आया था, मैं फकत इनकी जान बचाना चाहता था। प्रताप राय ने जवाब दिया, लेकिन मुझे क्यों कर यकीन आया कि तुम राजा के सामने ऐसी कहानियां बयान करके इसे मेरे खिलाफ नहीं भड़काओगे। प्रताप, मैं वादा करता हूं कि एक राजपूत का वादा मुझे पर एतबार करो। तुम्हें ये गवाही भी देना पड़ेगी कि जहाज पर से कोई भी लड़की गायब नहीं हुई। अगर तुम इन्हें छोड़ दो तो मैं ये वादा करने के लिए भी तैयार। इन्हें छोड़ना ना छोड़ना राजा का काम है। मैं सिर्फ ये वादा कर सकता हूँ कि इनके साथ आइंदा कोई सख्ती नहीं की जाएगी। तुम्हें राजा के सामने भी मानना पड़ेगा कि तुमने इन लोगों को छुड़ाने की नीयत से मुझ पर दबाव डाला और अपनी बहन को एक बहाना बनाया था। जयराम ने शिकस्त खुर्दा होकर जवाब दिया, मैं इसके लिए भी तैयार। प्रताप राय ने रोहे की सलाख फेंकते हुए कहा, तुमने मुझे ख्वामख्वाह परेशान किया। तो दोस्तों, इसके साथ ही आज हम इजाजत चाहते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला नई किस्त के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह।